Assalamu alaikum. Welcome standard 7. Student, today we learn English. See on the page number 56 to 58. Great scientists have a questioning mind. Great scientific mind are resolved with question. They keep asking, why does this happen? Can I make it better? Or what more can do this? Let us study the life of a great scientist who lived in the same era as Einstein but about 5,000 kilometers east of Germany in India. अजीम साइंसदानों के जहन और दिमाग सवालात की वजह से बेचैन रहते हैं। वो पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इसमें इस्तेलाह कर सकता हूँ या इसकी बिना पर कुछ और किया जा सकता है? एक अजीम साइंसदान जो आइंस्टाइन के ज़माने में लेकिन जर्मनी से मशरिक की सिमत 5,000 किलोमीटर के फासले पर भारत में रहते थे। हम उनकी ज़िंदगी के हालात का मुताला करेंगे। Born in Tiruchirappalli in southern India in the year 1888, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. He was a bright student right from the start and was deeply interested in the optical science and acoustics. This is what perhaps led him to discover that the Maridon gum and the tabla produce more melodious sound than any other precious instrument. He was fascinated by colorful things, be a flower, butterfly, or game. It kept seeking knowledge about everything around him. सन ईस्वी 1888 में जुर्मी भारत के तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए रमन भारत के निहायत ही अजीम साइंसदानों में से एक थे। इब्तदाई से वह एक निहायत होशियार तालिब इल्म थे। उन्हें बसरियात और समियात सूतियात में गहरी दिलचस्पी थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने दरियाफ्त किया कि मौसीकी के ताल वाले आलात उंगलियों के ज़रब से बजाए जाने वाले आलत में मर्दंग और तबला सबसे ज़्यादा सुरीली खुशाहंग आवाज़ पैदा करते हैं। वो रंगीन चीज़ों के गर्विदा थे, खवा फूल हो, तितली हो या जवाहिर। वो अपने गिर्द की हर चीज़ के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करते थे। He became a scholar in sound and sound-related physics. One day, a ship sailed from the part of London towards Calcutta. On board was young C.V. Raman, who had delivered a lecture on the acoustics of violin in London. He was now on the ship deck, gazing at the blue waters of the ocean. वो सूद से मुतालिक इल्म तबीयत के एक स्कॉलर हो गए थे। एक दफ़ा एक जहाज़ लंदन की बंदरगाह से कलकत्ता के समंदरी सफ़र पर निकला। इस जहाज़ में नौजवान सीवी रमन थे, जिन्होंने लंदन में वायलिन की सूतियात पर लेक्चर दिया था। अब जहाज़ के अर्शे पर खड़े थे वो समंदर के नीले पानी की तरफ गौर से देख रहे थे। As he glanced up the sky, which was of the same shade as the ocean, a series of questions popped up in his head. Why are both the sea and the sky blue in color? What is the science behind this occurrence? उन्होंने नज़र उठाकर आसमान को देखा। वो भी समंदर की तरह के रंग का था। तब उनके जहन में सवालात का एक सिलसिला सा उभरा। समंदर और आसमान दोनों ही नीले रंग के क्यों होते हैं? इस वाक़े के पीछे कौन साइंस है? ये जानने के लिए his mind seemed to suggest that the reason could be a scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to the proved scientifically. उनका ज़हन तजवीज़ करता दिखाई दे रहा था कि पानी के सालमात के ज़रिए रोशनी नूर का इंतशार उसके यानी रंगों की यकसानियत की वजह से हो सकती है। बहरहाल ये उसूल अभी तक साइंसी तौर पर साबित होना बाकी था।
When the ship anchored at Calcutta, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. His search in optics, the science of light, resulted in the discovery of the Raman effect. He announced it to the scientific world in March 1928. The discovery earned him the Nobel Prize for Physics in 1930. It was the first time this prize was awarded to an Asian. The day is discovered the Raman effect. 28 February was later declared as National Science Day. जब कलकत्ता में जहाज़ लंगर अंदाज हुआ तो ये नौजवान शख्स इस असूल को साबित करने के लिए जल्दी से तजुर्बात करने के लिए चला गया। नूर की साइंस बसरियात में इस तहकीक के नतीजे में रमन असर की दरियाफ्त हुई। उसने साइंसी दुनिया में इसका ऐलान मार्च 1928 में किया। इस दरियाफ्त पर उसे 1930 में फिज़िक्स का नोबल इनाम दिया गया। यह पहला मौका था कि ये इनाम किसी एशियाई को हासिल हुआ था। जिस दिन उसने रमन असर दरियाफ्त किया उस दिन यानी 28 फरवरी को बाद में कौमी साइंस दिन करार दिया गया। Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected Fellows of the Royal Society in 1924. You would have learned about the Raman effect in detail at school, but do you know this discovery subsequently helped in determining the internal structures of the sun 200 chemical compounds, 2000 chemical compounds. And can you guess what the loss of the equipment that Raman used to prove his theory was? A measly 200 rupees. इससे किबले ही बसरियात इल्मनूर में उनकी तहकीकी कारकर्दगी तस्लीम की जा चुकी थी। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो रुकन के तौर पर मुंतखब किया गया था। आपने स्कूल में रमन असर के मुतालिक मुफस्सिल पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप वाकिफ़ हैं कि इस दरियाफ्त की वजह से बाद के ज़माने में तकरीबन 2000 कीमियाई मुरक्कबात की अंदरूनी साख्त मुतय्यन करने में मदद मिली? Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems. They should search around themselves and find those answers in accordance with nature. For the essence of science lies in independent thinking and hard work, and not in equipment. How true! Though the oceans and the sky have always been blue in color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it. और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस उसूल को साबित करने के लिए रमन को इस्तेमाल हुए आले की कीमत क्या थी? 200 रुपये की हकीर कीमत। तो रमन का पुख्ता ख्याल था कि साइंसदानों को साइंसी मसाइल हल करने के लिए तजर्बागाहों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इन्हें अपने गिरदोपेश में भी तहकीक करना चाहिए और नेचर के मुताबिक उनकी जवाब के दरियाफ्त करना चाहिए, क्योंकि साइंस का जौहर आज़ादाना सोच और मेहनत शाका में ना कि आलात में कितना सही है। हालांकि समंदर और आसमान के रंग हमेशा से नीले रहे थे, लेकिन इसके पसे पुश्त सबब दरियाफ्त करने के लिए साइंसी नुक्ते नज़र रखने वाला मुतजस्सिस दिमाग की ज़रूरत थी। ये था सबब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। दिस इज़ द लेसन द ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।